Good morning, students. So today's topic is meristematic tissue. In previous class I have already explained what is meristematic tissue. Again, I am saying meristematic tissue. It is a group of cells which are in continuous divide and redivide stage and responsible for the growth of the plant. Okay. Today we are going to discuss the types of meristematic tissue. So meristematic tissue are different types. One is called as apical meristem or apical bud, axillary bud, lateral meristem, intercalary meristem. Okay, these are. And I already told you that apical, axillary and intercalary are the primary meristem and lateral meristem is the secondary meristem. Meristem is it is a short form of meristematic tissue. Apical meristem or apical bud, these are the similar thing, but apical buds represent that the group of cells present at the one point only, and apical meristem it is distributed in the stem. And the apical meristematic tissue is present in both form. It is present at one place also. In case of root, it is present at one place in root tip, and shoot at the shoot tip it is also present at one place. But in spite of that, in stem, apical meristematic tissue also distributed along its length. Now let us discuss in detail. For the study of meristematic tissue, we can do one experiment. Take an onion, and remove the old root from it, and then place this onion in a glass full of water, keeping only the bottom portion of the onion touch with water, and leave it 3 to 4 days. You will see a white fiber like structure comes from the bottom of the root, and it is the meristematic tissue, and this root called as this fiber called as root. And when we take the tip of this root, we will see the meristematic tissue. So we can observe and the division of cell also in meristematic tissue by this experiment. Okay, now come to our topic again, meristematic tissue. During seed germination, the true structure, plumule and radicle is present, and this contains only the apical meristematic tissue. Apical meristematic tissue only present in a plumule and radicle. When plumule develop in a shoot and radicle develop as a root, then this apical meristematic tissue divide in a different meristematic tissue. That means divide in a different primary meristematic tissue. How is it? Let's see. Suppose we will take this portion of the plumule. So you see, in the plumule, this portion only contain apical meristematic tissue. Apical meristem. It contains only apical meristem. When these plumule change into shoot, so that the height of the plant increases, so what is happen? This apical meristem also need to be increased in number by division of cell. So see here, division of the cell takes place. And as the height of the plant increases, मतलब जैसे जैसे प्लांट की हाइट इंक्रीज होगी, ये जो सेल्स हैं एपिकल मेरिस्टेम के, वो भी डिवाइड होना शुरू कर देंगे और ये ऊपर की तरफ भागेंगे.
और इस तरीके से होगा कि ये सब आपस में ही रेस लगाएंगे ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो रेस में क्या होता है, कुछ जो होते हैं, जो मेंबर्स है ना, जो रनर्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, कुछ बीच में रह जाते हैं और कुछ ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यही स्टेज इसमें भी होता है। जब एपिकल सेल्स जो हैं रैपिडली डिवाइड करके ऊपर की तरफ जाएंगे, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, प्लांट की हाइट बढ़ेगी, ओके, उस दौरान क्या होगा कि कुछ सेल जो हैं पीछे रह जाएंगे और कुछ सेल जो हैं वो बीच में रह जाएंगे और कुछ सेल जो हैं ऊपर तक पहुंच जाएंगे। जो नीचे रह जाएंगे वो नीचे में क्लस्टर हो जाएंगे, ओके, और सौभाग्य से वो और ठीक है, यानी कि फॉर्चुनेटली जहाँ वो क्लस्टर होंगे वहाँ पर नोड होगा अगर, तो वो उस नोडल पोजीशन पे इकट्ठे हो जाएंगे और वो कहलाएगा एक्सिलरी बर्ड। ये नोड है, ये दीज आर द नोड। तो नोडल पोजीशन पर जाए तो कहलाएगा एक्सिलरी बर्ड, और बीच में रह जाएंगे तो बनेंगे लेटरल मेरिस्टेम, ओके, और जो टॉप पे पहुंच गए वो सब कहलाएंगे एपिकल बर्ड। और इस टॉप में भी जब ये चलेगा तो ये आपने देखा होगा जब प्लांट की जब ग्रोथ होती है तो ऊपर का पोर्शन जो है वो पतला होता है और बीच का जो है मोटा होता जाता है। तो जो टॉप पे बिल्कुल जो पहुंच जाएंगे, ये जो जा रहे हैं, क्लियर, कौन, आपके जो एपिकल सेल्स हैं, तो जहाँ टॉप पे पहुंच जाएंगे वो कहलाएंगे एपिकल बर्ड, क्योंकि ये टिप पोर्शन होगा, तो यहाँ पे वो एपिकल बर्ड कहलाएंगे। और जो आजू बाजू होंगे वो क्या कहलाएंगे, एपिकल मेरिस्टेम। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में ये एपिकल मेरिस्टेम है और जो टिप पे पहुंच गया वो एपिकल बर्ड है। इस तरीके से एपिकल मेरिस्टेम से सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप हो जाते हैं। बस इसमें भी वही चीज़ है, रेस लगी हुई है। जब प्लांट की हाइट बढ़ेगी तो इस प्लांट की हाइट बढ़ेगी कैसे, क्योंकि ये एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है यही प्लांट की हाइट बढ़ाएगा। और जब ये बढ़ाएगा कैसे, ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं दे विल डिवाइड एंड रीडिवाइड एंड इंक्रीज इन नंबर, ओके, एंड मूव अप इन अपवर्ड डायरेक्शन और आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली प्लांट की हाइट ऊपर बढ़ती है और नीचे भी बढ़ती है, नीचे रूट में, तो रूट में भी यही होगा। जो आपके एपिकल बर्ड होंगे टिप पे जो होंगे वो एपिकल बर्ड होंगे, और यहाँ जो साइड में होंगे क्या होंगे, एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, क्लियर। टिप पे सिर्फ एपिकल बर्ड होता है क्योंकि वहाँ पे इकट्ठे होते हैं एक साथ, और बाकी जगह पे ये जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे एपिकल बर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हाइट बढ़ाएगा एपिकल और अपवर्ड डायरेक्शन में भी, क्लियर। अब आते ये चीज़ है, अब आते हैं एक्सिलरी बर्ड। जो एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड जो है, इसको एक्सिलरी बर्ड इसलिए कहा जाता है, पहले तो ये नोडल पोजीशन में, और एक्सिलरी बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट है, प्लांट की जो में अगर ये लीफ है तो ये लीफ के एक्सिल में पाया गया है। देखा गया है कि ये जो बर्ड है जब हम ये लीफ को हटाते हैं तो यहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये लीफ है, लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट है, इसलिए इसको एक्सिलरी बर्ड कहा जाता है। ये एक्सिलरी बर्ड जो है यही, ओके, एक्सिलरी बर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लियर फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट ऑफ द प्लांट, लाइक न्यू लीफ, न्यू ब्रांच, flower, fruit, all of because of only axillary bud. Okay, now come to the lateral meristem. Lateral meristem, as I already told you, it is a secondary meristem. It is secondary meristem. Okay, secondary meristem. Secondary why? Because it is responsible for the secondary growth of the plant. Secondary growth means thickness, increase thickness. तो ये इसलिए साइड, ये लेटरल साइड में होगा प्लांट के, जिससे कि इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। ये लेटरल मेरिस्टेम है। और लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है क्या, कैम्बियम। एग्जांपल इज कैम्बियम। ओके, ठीक है, हो गया। अब लास्ट है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो जो हमारे ट्रीज़ हैं या जो लॉन्ग हाइटेड प्लांट्स में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं हर्ब्स में, जनरली ग्रासेस में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, ये ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि परमानेंट टिश्यू जो हैं,
जो परमानेंट टिश्यू मैंने बताया था, जो परमानेंट टिश्यू हैं उनके बीच पाया जाता है। मीन्स ये परमानेंट टिश्यू है, ये भी परमानेंट टिश्यू है। मैं अभी क्योंकि एपिकल का पहले बताया था कि जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उनकी कोई रेगुलर शेप एंड साइज नहीं होता है, लेकिन परमानेंट का होता है क्योंकि उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर शेप गेन कर लिया, तो उनके बीच पाया जाता है ये। उससे क्या होगा, जब भी आपने देखा हो कि ग्रास को क्या होता है, ये जनरली ग्रास से पाए जाएंगे। तो ग्रास को देखा है कि आपने कि जो है ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रास को चढ़ जाते हैं ऊपर से, या आप ग्रास को तोड़ देते हैं तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद फिर से क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो आपने ये परमानेंट टिश्यू निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर तो है ना इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम फिर से की ग्रो कर जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम का वर्क है टू rejuvenate the lost part या to replace the lost part of the plant by the new, क्लियर। या टू हम कह सकते हैं टू रीजनरेट प्लांट पार्ट विच इज लॉस्ट बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स। किसका फंक्शन है, लेटरल मेरिस्टेम का। So I hope all of you understand the meristematic tissue.